খালকি বিলা নাফসি। যখন তোমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করো, সোশ্যাল ওয়ার্ক মধ্যে কোনো গরিবকে আপনি কাপড় দান করলেন, বড় বড় লোক আছে না গ্রামে, টাকা থাকে জাকাত বের করলো, কাপড় নিয়ে আসলো, 150 টাকার শাড়ি নিয়ে আসলো, লাইন লাগিয়ে তাকসিম করছে, বাঁটছে লাইন লাগিয়ে। আর গরিব, যে গরিব নাই সেও ওই লাইনে আছে, হয় কিনা ভাই? এরকম 10 জায়গায় এরকম করতেছেন। আপনার গ্রামে হলো, গোবিন্দগঞ্জ হলো, সিকিউরিটি বসে আছে আমার মরিদ, জিজ্ঞেস করো। আর অন্য অন্য জায়গায় এরকম হয়। একটা ব্যক্তি 10 জায়গা গেল, 150 টাকার শাড়ি নিয়ে আসলো, সেই ব্যক্তি কি করলো? দোকানে বিক্রি করে দিল। কারণ ওর 150 টাকার শাড়ি ঈদের দিন পরা যাবে না। তা আপনার দান কিছু কাজ আসলো, ওই তো 100 টাকার মধ্যে দিয়ে দিল, দোকানদার লাভ করলো। যাকে দিলেন ওর কাজ আসলো না, শুধু আপনি মানুষকে দেখাবার জন্য করেছেন। হুজুর গোসে পাক বললেন, কোন মাহাল খালকি বিলা নাফসিন। যখন তোমরা সোশ্যাল ওয়ার্ক করো, মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, সেই সময় নিজের নফসকে শেষ করে দাও, নিজের নফসকে দূর করে দাও। তোমার নফস তোমাকে বাঁকাতে পারে না, তোমার নফস তোমাকে পথভ্রষ্ট রাস্তা না দেখাতে পারে, তাহলে ওই দানটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, হুজুর নকিবুল আউলিয়া, নারে তাকবীর। আমরা ভাবলাম যে জান্নাত সহজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আলা ওয়া ইন্নাল জান্নাতা হুফফাত বিল মাকারিহ। आगाओ जाओ कि जन्नत को तकलीफों ने घेर लिया है। कहो सुभान अल्लाह। यानी कष्ट जन्नत हासिल করার জন্য কষ্ট অনেক কঠিন ব্যাপার। এবারে সুফিগণ কি বলেন, এটা ব্যাখ্যা কি করছেন? সুফি একরাম ব্যাখ্যা করতেছেন যে জান্নাত পাওয়ার জন্য তোমাকে পর্বত পাহাড় উপরে চলতে হবে। পাহাড় ছোট হয়ে বড় বলেন তো? আপনি আজমির শরীফ গেছেন, তারাগড় পাহাড় যেতে যেতে 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে। আমাকে এই বয়সে গাড়ে হেরা যখন যাই আমি, তো আমাকে চলতে চলতে শ্বাস ফুলতে লাগে, 3 ঘন্টা গাড়ে হেরা লাগে। প্রত্যেক বছর যাই গাড়ে হেরা। কিন্তু জাবালে সর যখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গুহাতে থেকেছিলেন 3 দিন, ওই একটু নিচে নেমে। কিন্তু বড় পাহাড় উপরে চড়তে হবে তোমাকে জান্নাত হাসিল করার জন্য। কাজ কি করবা? তারপরে ওখানে গিয়ে তোমাকে কৃষির কাজ করতে হবে। কৃষি কাজ করার জন্য আগে তোমাকে মাটি তৈরি করতে হবে। বলো, পাহাড়ের উপরে মাটি থাকে या পাথর থাকে? পাথর আছে। তো আপনি কিরকম ওই পাথরকে নরম করতে পারবেন? কষ্ট আছে কিনা বলেন? তার উপরে আপনাকে মাটি হালকা করতে হবে, সার দিতে হবে, পানি দিতে হবে, মসজিদ রাত দিকে হেফাজত করতে হবে। और পরে আপনি ধান পাবেন, গম পাবেন। যত কঠিন নিচের দিকে উপরে যাওয়া, এই সেইখানে খেতে করা কঠিন আছে, সেই দিকে বেশি কঠিন আছে জান্নাত হাসিল করা। আমরা ভাবি যে জান্নাত এরকম পাওয়া যাবে। আমরা তো সালাম করি, জান্নাতি আছি, ফাতিহা করে নিলাম, পীরের হাত বসা দিয়ে দিলাম, জান্নাত পাওয়া গেল। কঠিন ব্যাপার।
হ্যাঁ, জাহান্নাম সহজ। হুজুর বললেন আলা ওয়া ইন্নান নার উফফাত বিশ-শাহাওয়াত, জাহান্নাম সহজ। সুফিয়া বলেন কি তুমি বাড়ি থেকে বের হো, মনটা খারাপ করে নাও, কোন মহিলাকে দেখে তোমার নিয়তটা খারাপ হয়ে গেল, তুমি সুদের কাজ আরম্ভ করে দিলা, মদ খেয়ে নিলা, জাহান্নামে যাবে কিনা মরার পরে? বলেন তো আবার আগে যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে জাহান্নামে যাবে কি যাবে? তো জাহান্নাম তো আসান, কিন্তু জান্নাত খুব কঠিন। আমাদের মহিলাগণ কি করে, রমজানের মাস তো আসার সময় আগেই বলে দেয় কি ডক্টর আমাকে মানা করেছে, কিন্তু দেখবা যে মাঝখানাই বছরে দেখবা বলবে কি আমি আজকে রোজা আছি, কারণটা কি? হাজারি রোজা, একটা রোজা রাখলে 1000 রোজার নেকি পাওয়া যাবে। আমরা শুধু নেকি কিনি, আমি নেকি কিনি। কোরআন বললো ইন্না হাযা কানা লাকুম জাযা, যখন হিসাবের কিতাবের পরে জান্নাতি জান্নাত মধ্যে চলে যাবে, জাহান্নামী জাহান্নামে যাবে। জান্নাতি যখন জান্নাতে দাখিল হবে সেই সময় ফেরেশতা বলবে ইন্না হাযা কানা লাকুম জাযা, सुनो ऐ जन्नती लोगों, तुमने जो दुनिया में नेक अमल किया, सायुकुम मशकूरा, जो तुमने मकबूल अमल किया, ये इसी का बदला है जन्नत। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আজকে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি না, নামা আমাদের মসজিদ খালি থাকে, মসজিদ বড় তৈরি করে দিলাম কিন্তু মসজিদে নামাজি নাই। আফসোস আফসোস সব আফসোস। আজকে অন্য মযহাবের লোক নিজের ধর্মের প্রচার করছে, কিন্তু আপনি এক সঠিক মযহাব উপরে আছেন, সঠিক ধর্মীয় উপরে আছেন। কি আপনি নিজের ছেলেকে মাদ্রাসায় শিক্ষা হাসিল করার জন্য পাঠালেন? কি আপনি নিজের ইমামকে বলে কি ইমাম সাহেব আমাকে কিছু জ্ঞান দেন, শিক্ষা হাসিল করার চেষ্টা করেছেন? নাই। আজকে কোনো প্রশ্ন কেউ অন্য ব্যক্তি রেখে দেয় তা আপনি উত্তর দিতে পারবেন না। কারণটা কি? এই জন্য সাহাবায়ে কেরামের যুগ দেখে হাদিস মধ্যে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজের পরে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বসে যেতেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের মুকদ্দাসের তেলাওয়াত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম তেনার পূর্বে তেনার ইত্তেবা করতেন, তেনাকে শুনে শুনে সেই রকম পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন, সাহাবায়ে কেরাম শুনতেন। 70 জন সাহাবা যিনাকে আসহাবে সুফফা বলা হয়, তিনারা ওইখানে থেকে 2টা খেজুর খেয়ে কোন দিন এরকম হয় যে 3 দিন হয়ে গেল একটাও খেজুর পাওয়া গেল না। হাদিস মধ্যে আছে যে সাহাবা এরকম দুর্বল হয়ে গেলেন, এরকম কমজোর হয়ে গেলেন যে নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, রাসূলুল্লাহ ইমামত করছেন, সাহাবায়ে কেরাম গশ খেয়ে পড়েছেন। ও জ্ঞান হয়ে যেতেন। এরকম ঘটনা হয়েছে। एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की मुअतबर और सही हदीस है जिसका खुलासा सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से खाए पिए नहीं, नबी के क्लास में बैठे, नबी जो सबक दे रहे हैं अबू हुरैरा पढ़ते हैं, नमाज होती है, अबू हुरैरा पीछे इक्तदा करते हैं और खाना नहीं मिल रहा है। अबू हुरैरा ने किसी से शिकायत नहीं की है। 3 दिन गुजर चुका है, अबू हुरैरा खड़ा नहीं हो पाते हैं, खड़े होते हैं फिर बैठ जाते हैं। इरादा हो गया है, अबू हुरैरा के इरादा हो चुका है कि अब मैं जाता हूँ, चौराहे पे बैठ जाऊंगा, कोई भी सहाबी तो आएंगे
जो मुझसे खैर पूछेंगे, खैरियत पूछेंगे, मैं कह दूंगा मैं भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है, कुर्बान जाओ सहाबाए कराम के सर के ऊपर के भूखे हैं लेकिन लबकुशाई नहीं करते हैं। बैठ गए चबूतरे पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि अब अबू बकर आ रहे हैं, अब इनसे मैं सवाल करूंगा, कुछ तो बोलेंगे, मैं कह दूंगा मैं भूखा हूँ। अबू हुरैरा ने सलाम किया, जवाब मिला, या इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और इन्होंने मसला पूछा, अबू बकर ने जवाब दे दिया और कुछ हाल नहीं पूछा। कैफ़ हालुका या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा तुम्हें कैमन आछो, ये नहीं पूछा। आगे बढ़ते चले गए। उमर फारूक आज़म आए, सलाम कलाम हुआ। हजरत अबू हुरैरा ने मसला पूछा है लेकिन उमर ने हाल नहीं पूछा। आखिर में देखते हैं कि दो आलम के ताजदार रूहे फिदा जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। गैब का नबी मुकर्रम ने अबू हुरैरा का चेहरा देखकर पहचान लिया कि अबू हुरैरा भूखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बदअकीदा कहता है नबी को गैब का इल्म नहीं। सरकार आला हज़रत जवाब देते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा है छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा है छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब देखो कमाल क्या हुआ, सरकार के साथ अबू हुरैरा चल दिए। हुजूर घर में गए, पूछा अपनी शरीके हयात से कुछ है। अचानक निगाह पड़ी, एक गिलास दूध रखा है। किसी ने बताया रसूलुल्लाह एक पड़ोसन ने एक गिलास दूध भेजा है। अबू हुरैरा ने जब गिलास का दूध देखा तो दिल में एक इत्मीनान सा आने लगा कि अब तो दूध सरकार हमें देंगे, मैं पेट भर लूंगा। इतने में अभी सोचा ही था कि हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ अपने 70 साथियों को जो 3 दिन से भूखे प्यासे उन्हें बुला कर लाओ। अबू हुरैरा कहते आज हम और आप होते तो क्या बोलते, আমাকে নিয়ে আসলেন, আমাকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, আমি প্রথম ভুকা ছিলাম, এই কথা বলতাম। কিন্তু সাহাবী थे वहाबी नहीं थे। हमने हुजूर की बात मानी, चले गए बुलाने, 70 लोग आ गए। हज़रत अबू हुरैरा सोचते हैं कि हुजूर फरमाएंगे अबू हुरैरा पहले तुम पी लो, लेकिन हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम सबको पहले पिलाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू हुरैरा पिला रहे हैं, एक ने पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे पांचवे ने पिया। 70 लोगों ने जब दूध पी लिया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कसम खुदा की मैंने जब गिलास देखा तो जितना दूध उस वक्त अभी भी होता दूध हुजूर नकीबुल औलिया जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो कितने शफीक आका हमारे रहमतुल लिल आलमीन फरमाते अबू हुरैरा अब तुम पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने मुझको मौका मिला, मैंने दूध खूब पिया खूब पिया खूब पिया, इतना पिया कि हमारे नाखून से दूध के आसार मालूम होने लगे। फिर रखने लगे। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहती है रसूलुल्लाह मैं बहुत फिर भी पी लिया।
फिर कहा या रसूलल्लाह बस अब नहीं पी पाऊंगा। हुजूर ने फरमाया लाओ अब मैं पीता हूँ। है वाह 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 सुभान अल्लाह। लाओ कोई ऐसा मौला, मौला से मुराद आका, कोई है आका जो अपने गुलामों को पिला दे और गुलामों का जूठा खुद पिए। जो गुलामों का जूठा पी ले उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। का अखलाकी अजीमा था जो मक्का की सरजमीन पे बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी हरवा के और उनके अखलाके हसना की वजह से दुनिया तक आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन सेकंड दर्जे में है। आज यही है रसूलुल्लाह का अखलाक। मुसलमानों आज हम भी अपने अखलाक को अच्छा कर लें, अपने चरित्र को अच्छा कर लें तो यकीनन गैर भी हमारे मजहब को कबूल करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? यही वो मजहब है जो हक्कानियत की दावत देता है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। हमने अल्लाह को कैसे पहचाना? हम तो किसी और गंगा और ये को नहीं मानते ना। हम तो जानते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ पानी है, दरिया है, समंदर है ना, समंदर है, बहता है, वो भी अल्लाह का मखलूक है ना, वो भी अल्लाह का मखलूक है। हमारे नबी ने फरमाया वो बहता हुआ पानी तो उसमें निजासत गिर जाए, नापाकी गिर जाए तो वो पानी नापाकी को लेके चला जाता है। वो पानी नापाक नहीं होता, वो औरों का होगा, वो औरों का होगा कि अगर मांस गिर जाए तो उनका नापाक हो जाता हो। तो जो ऐसा दरिया जो मांस गिर जाए तो नापाक हो जाए, उससे पनाह अल्लाह की है। हमें तो शुक्र है उस परवरदिगारे आलम का जिसने हमें एक अजीम दरिया दिया, ऐसा समंदर दिया कि दुनिया के मैल कुचैल भी डाल दो फिर भी वो नापाक नहीं होता। वो अपने अंदर लाकर सबको पाक कर देता। हाँ सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की अजीम कुदरत है। बहरहाल मैं फिर बहक गया, दूसरी तरफ चला गया। मैंने वो बात कही थी, नफ्स, हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना होगा। किस तरह? सिर्फ ये नहीं कि शराब से बच गए तो नफ्स में कंट्रोल। एक नमाजी भी नफ्स कंट्रोल नहीं करता, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, हिंसा करता है ना, हिंसा करता है। हिंसा कब मालूम होता बोलो तो? जब किसी का माल देखकर तुम्हारे दिल में ऐंठन पैदा होने लगे। कोता बोलता ये कुछ, जब किसी का माल देखा और माल देख करके आपके दिल में पूछा किसी ने, मुफ्ती गुलाम सरवर ने पूछा, अरे वो आदमी बहुत मालदार है भाई, बहुत माल मेहनत किया, तो आपने क्या कहा? हाँ मालदार है, कहां से जो माल लाया लाई जाए। तो समझ जाओ कि तुम्हारे दिल में हिंसा है। तुम कौन हो भाई? डायरेक्ट आसमान से टपक गया? तुमने क्यों संभव किया, क्यों शक किया उसके ऊपर? तुमको क्या राइट था? जब आप अपनी आंखों से देख लेते कि वो हराम कमा रहा है तब आप बोलते। आपने कैसे शक के दायरे में उसे कमा? ये मजहब नहीं सिखाता। इसको दूर करना होगा, इसको दूर करना होगा और इन तमाम बुराइयों से बचाएगा जब हम नफ्स को मार देंगे। नफ्स क्या है? एक मिसाल के जरिए समझिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ए दौर बारे एक योगी असलो जोगी, जो यूपी का बंदर है वो नहीं, वो असल योगी था। समझ गए ना? हाँ असल योगी था।
असल योगी कैसा होता है वो भी देख लो। दिल्ली में सारे लोग उसके पास जाते थे। वो करता क्या था, कोई बीमार क्यों बीमार पड़े जाए তাহলে লোক গেল তা তাকে ফুক দিলে দিল, ফুক দিয়ে দিল, ওই মানুষটা ভালো হয়ে গেল। এই খবরটা পুরো দিল্লিতে ছড়িয়ে গেল। হযরত মাহবুব এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছে একটা মুরিদ বলল, হুজুর এমন এমন ঘটনা। নিজামউদ্দিন আউলিয়া চিন্তায় পড়ে গেলেন, ওই তো ব্যক্তি কাফের মুশরিক, কিন্তু কারণটা কি যে তার ফুক মধ্যে তো তাসির আছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, কেউ উত্তর দিতে পারতো না। এই জন্য আপনি 2-4 দিন খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। খাওয়া না খেলে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়, কমজোর হয়ে যায়। বিছানা উপরে শুয়ে গেলেন। মুরিদান গুলেরা বলল, হুজুর বিমার হয়ে গেছে, হুজুর যদি বলেন তা আপনার হাকিমকে ডেকে নিয়ে আসুন, डॉक्टर নিয়ে আসুন। হুজুর বললেন নাই, बीमार हो तब तो बोलेंगे, बीमार तो नहीं है, बीमारी नहीं। एक मुरीद बोला कि हुजूर एक योगी है जो फूंक देता है तो ठीक हो जाता आदमी, उसको लाए। आपने फरमाया हाँ हाँ उसको लाओ। কথা বললেন তো, এর মকসদ ফুঁক দেওয়ানো নাই, পরীক্ষা নিতে। परीक्षा देवान इनर मकसद छिलो, ये आजमाना चाहते थे कि कारण क्या है। अब मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि नफ्स कितना बड़ा दुश्मन है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पास उस योगी को लाया गया। निजामुद्दीन बैठ गए, उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया बोल तू क्या अमल करता है, कौन सा अमल करता है, सच बोल। उसने कहा मैं कोई अमल नहीं करता। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं सच बोल कौन सा अमल करता है। उसने कहा हुजूर मैंने कहा मैं कोई अमल नहीं करता, कोई पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ एक काम करता हूँ, मेरा जो नफ्स कहता है खाने को वो नहीं खाता। सपोज कीजिए, ये उदाहरण देता हूँ कि अगर हमारा दिल मन नफ्स जो है ना, आपको समझाने के लिए मन कहता हूँ, मन जो भी चाहे कि पानी पिए तो वो आदमी पानी नहीं पीता था, दूध पीता था, और दूध चाहे तो पानी पीता था। तो मन के खिलाफ सब काम करता था। हज़रत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं सच बोल। कहा सच बोलता हूँ, कहा सच बोलता हूँ। कहा ठीक है तब कलमा पढ़ दो। अब गौर से समझना मेरी बात को। कहा कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब वो सोच में पड़ गया। नफ्स कहता है नहीं मत पढ़ना कलमा, मुसलमान हो जाएगा। नफ्स कहता है, अब वो तो जिंदगी भर नफ्स के खिलाफ काम किया ना, नफ्स का विरोध काम किया ना, तो नफ्स कहता है मत पढ़ो कलमा। और वो जो योगी है वो सोचता है ना, नफ्स के खिलाफ करना है। नफ्स बोल रहा है मत पढ़ो, तो उसका खिलाफ क्या होगा, पढ़ो। योगी पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया नफ्स के खिलाफ चलते चलते उसे इस्लाम की रोशनी अता हो गई, इस्लाम का कलमा नसीब हो गया। मुसलमानों मुसलमानों आज भी अगर हम ठान ले, मेरी माँ बहनों आप भी अगर ठान लो तो यकीनन हम और आप कामयाब होंगे। अब एक और हदीस सुन लो, अब एक और हदीस शरीफ सुन लो, दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं हदीस सुना के खत्म कर दूंगा। अल्लाहुम्मा